Hello everyone. Let me introduce first of all myself. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD and IIT Lucknow. Okay. So, we discuss the contour and now we will discuss in this lecture types of contouring. Okay. In the previous lecture we have discussed what is contouring, what is contour, purpose and characteristics of contouring. So, in this process now we come on the topic types of contouring. Okay. It is also a important and simple topic in the contouring. Okay. So, surveying and geomatics, this is the lecture number 8 mod 1. So, methods of contouring, we have discussed here method of contouring. So, we know what is contour. Okay. The imaginary line we have draw on each point on this line which have same elevation, Okay. The points on the imaginary lines which have the same elevation, that is known as the contour. Okay. And we have draw contour map. Before we drawing the contour map, we have understand how we can draw. So, the contouring, there is some methods we have discussed here. Methods of contouring, what is mean by this? Contouring requires the planimeter's position of the points whose elevation have been determined by the leveling. The methods of locating contours therefore depending upon the instrument used to determine the horizontal as well as vertical position of the several points in the area. मीन्स आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जो कि हमें क्या बता सकते हैं, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी फील्ड पर हमको उस पॉइंट की पोजीशन के बारे में पता करना अगर है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिनके द्वारा हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल, RL, रिड्यूस लेवल या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सब की हेल्प से ही हम कंटूरिंग कर पाएंगे. ओके. तो सबसे पहले उसमें हमें प्लेनीमीटर की जरूरत होती है जो कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बताता है, एलिवेशन बताता है. लेवलिंग करते हैं हम लोग, उससे भी हमें बताते हैं हम उसके क्या रिड्यूस लेवल, और हमें मालूम है कि हमको सिर्फ वर्टिकल एलिवेशन ही फाइंड करने हैं और जो पॉइंट्स के सेम एलिवेशंस रहते हैं उन्हीं को ज्वाइंट करती हुई जो लाइन होती है उसको हम कंटूरिंग बोलते हैं. ओके. तो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में ये बात करनी है हमको कि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किसी और तरीके से हम ये काम कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ग्राउंड है उसका कितना एलिवेशन है, उस एलिवेशन को हम लोगों को ग्राफ पे बनाना है, तो वो कैसे हम पता करें. ओके. उनको फाइंड आउट कैसे करें, तो फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी. उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और हम एज अ सिविल इंजीनियर उन इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एलिवेशन फाइंड करेंगे. और उनको फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं. उन मेथड्स को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगा एलिवेशन और वो मिल जाएगा कंटूर. ओके. सो बेसिकली हेयर गिवन आर टू मेथड्स. वी हैव क्लासिफाइड मेथड्स ऑफ कंटूरिंग in two types. Okay. All the methods we have arranged basically in two types, and then we have discussed other methods which have come in these two methods. First one is direct methods and second one is indirect methods. Okay. So, the methods of contouring divided into two following cases. दो केसेस हैं. कौन कौन से, मस्ट विल लर्न, याद कर लो इनको. एक डायरेक्ट मेथड्स है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड. मतलब ये हुआ कि हम दो मेथड्स ऐसे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ग्राउंड पर उसका एलिवेशन फाइंड करेंगे और उसको हम एक मैप बनाएंगे, ग्राफ तैयार किया जाता है. ओके. तो उसको फाइंड करने के लिए, कंटूरिंग को करने के लिए हमको दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. We have explained the first method, that is direct method. डायरेक्ट मेथड्स में कैसे करेंगे, जैसा कि नाम है इसका डायरेक्ट मेथड्स,
in the direct method of contouring, the reduced level of the various selected position on a contour lines are obtained and their position are located. The contour are then drawn by joining these points. It is very accurate method, but it is a slow and tedious. Means what can we do here? In direct methods, we find out the, means if this is the elevation, so we here find out the position vertical. We can go on the field in this methods and reduce level of various selected point on the contour line or obtained. And then what we can do? These points we have drawn on this sheet. Okay. Here A, B, C, D, and we can say these all points have the same elevation. Then we join these points via freehand. Okay. So, this we can get a contour, and this process is contouring, but this is not a simple way. It is just some tedious, some slow, because first of all we go, then we can find out what is the distance, and then we check this is right distance or not. We find out the points, on which points we want to calculate the vertical distance. ओके ये बस एक पॉइंट बस याद रखना कि हमको हर पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है और उसी को हमको ग्राफ पे बताना है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। और उसी पॉइंट्स को जब होते हैं उनको हम एलिवेशंस बोलते हैं, और उन पॉइंट्स का जो एलिवेशंस होता है तो वो हमारा क्या रहता है, उसी को हम लोग शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा स्लो मेथड्स होता है और थोड़ा टीडियस भी रहता है, थोड़ा टफ रहता है। ओके, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ स्मॉल एरिया where superior accuracy is demanded. The method of locating contours directly consists of horizontal and vertical control. The horizontal control for a small area can be exercised by a chain or tape, a large area by composer, theodolite or plant table. For vertical contour, either a level and stop or hand may be level use. अब बात यह है कि इसमें कि अगर स्मॉल एरिया है उसको हम डिवाइड कर दिए तो हम चेन के द्वारा, टेप के द्वारा, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो हमको कौन कौन से चाहिए होंगे, थ्रीडोलाइट चाहिए, प्लेन टेबल चाहिए, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब हमने स्टार्टिंग की थी सर्विंग एट दैट टाइम डिस्कस। ओके, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट का अब यूज है। अब धीरे धीरे आपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ लिया, वो सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को जान लिया, उनके बारे में सारी चीज़ें जान लिया आपने, और फिर हम लोग जब ग्राउंड पे गए तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिस चीज़ के लिए यूज करना होगा हम उसको यूज करके और चीज़ों को फाइंड करेंगे। आपको एलिवेशन फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे, कंटूर ड्रा करना है तो उसके लिए हमको एलिवेशन चाहिए, और कौन कौन से हमें चाहिए। अगर एरिया कम है तो हम वहाँ चेनिंग के द्वारा कर सकते हैं, टेप के द्वारा कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ हम इसको फाइंड आउट करके और फिर हम वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये हमने पढ़े हैं। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमने ये वाला दिखाया है कि आप देखिए कैसे कंटूर को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया गया है कि देखिए बहुत पास पास लाइनें हैं, और अगर इतना पास पास लाइनें हैं तो इसका मतलब ये हो गया है हमारा कि यहाँ पर हमारा हिली रीजन होगा। ओके, अगर कहीं पर ये देखिए यहाँ पर दूर हैं हमारी लाइनें, ओके, ये कंटूर मैप है, इसको समझ लीजिएगा, ये कंटूर मैप है, इसको हमने आप लोगों के लिए इसको लाए यहाँ पर, तो आप इसको सीखिएगा कि अगर लाइन, बस कंटूर मैप को कैसे हम रीड करते, कैसे समझते। जो हम लाइनें अभी ड्रॉ कर रहे थे ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं किसी भी फील्ड की। अब इन लाइनों का क्या है कि देखिए हमने जैसे देखा है दूर दूर लाइनें, तो हम समझ गए यहाँ पर क्या होगा, फ्लैट ग्राउंड होगा। ओके, और अगर ये देखिए पास पास है तो क्या होगा, हिली रीजन होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, फ्लैट रीजन होगा, ये देखिए फ्लैट रीजन होगा, ये हिली रीजन्स होगा। और अब इनकी अगर हमें जैसे वैल्यूज पता हो, अगर इनका एलिवेशंस पता हो तो हम बता सकते हैं कि ये हिल है या डिप्रेशन में है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर जो फ्लैट रीजन होगा दूर दूर लाइनें होंगी, और अगर पास पास लाइनें हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिवेशन या तो है और या फिर डिप्रेशन होगा। ओके, इस ग्राफ को देख के जान सकते हैं। तो वाई लेवल एंड स्टॉप हम क्या कर सकते हैं, लेवल और स्टॉप को यूज कर सकते हैं। हम कहीं पर भी इस तरीके से साइड पे गए, यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कोई एक
जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, स्टेशन को सिलेक्ट किया, फिर इसका रिड्यूस लेवल हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करते रहेंगे कि किस किस पॉइंट पे है। स्टेशन चेंज की हमने, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आया, फिर यहाँ पर गया, ओके, तो इसका हमने रिड्यूस लेवल सब कैलकुलेट कर लेंगे और ये क्या होगा, किसी भी पॉइंट का एक लेवल होगा। सो स्टॉप और लेवल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं। द मेथड कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड having the same elevation by using a level and leveling stop. Instrument is set up in such a way as shown in diagram that number of reading can be taken from the area to be surveyed. The instrument is set up and RL or height of instrument is determined from the nearest benchmarks. As we know, whenever we set up here any station, so we have find out the benchmark nearest, and from that first reduced level we have calculated, then that is the height of instrument. For a particular contour value, the stop reading is worked. A series of points having the same stop reading is worked out and thus the same elevation are plotted and joined by the smooth curve. इस मेथड से हम क्या करेंगे, पूरे ग्राउंड का हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रिड्यूस लेवल, उसका एलिवेशन, और फिर हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पे आकर वो पॉइंट्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे देश, मान लीजिए ये वाला एलिवेशन है, इसका 110 है, तो 110 वाले एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, ओके, एक ये पॉइंट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को रफली हैंड से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा एक बन गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया जाएगा ये वाला, ये आपका 120 है, ओके, तो हमें पता है कट नहीं करते हैं, तो अब इनको हम रफली इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया। अब देखिए 120 110 घट रहा है, तो इसका मतलब हम क्या हो गया, केवल ग्राफ देखकर ही समझ गए ये हमारा इस रीजन का ग्राफ होगा जहाँ पे ये डिप्रेशन रहेगा, ओके। और अगर ये एलिवेशन वाला होता तो ये वैल्यू जैसे 120 है, फिर अंदर क्या होनी चाहिए थी 130, फिर अंदर वाले ग्राफ में 140। मीन्स अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है वैल्यू इनसाइड में, देन वी कैन से इट इज द हिली रीजन, और अगर धीरे धीरे वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक हमारा डिप्रेशन या वैली टाइप की है, ओके। तो अब आप ग्राफ देखकर ही जान सकते हो। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ही जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड्स में बाय लेवल और स्टॉप यूज करके, जैसा कि हमने बनाया यहाँ पे, आप यूज करके फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है डायरेक्ट मेथड। दूसरा, बाय हैंड लेवल, द प्रिंसिपल यूज इन द सेम एज दैट यूज इन द मेथड यूजिंग अ लेवल एंड स्टॉप। इंस्टेड ऑफ हैंड लेवल एंड एवी लेवल में आल्सो बी यूज्ड, ओके। एक सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम याद रखिए आप लोग, एवी लेवल। एवी लेवल जो ये देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बना हुआ था बिल्कुल स्टॉप और उसी की तरह हम यूज करते हैं, और इससे भी हम डायरेक्ट एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं, ओके। मे आल्सो बी यूज्ड, हाउएवर दिस मेथड इज वेरी रैपिड एंड इज प्रिफर्ड फॉर द सर्टेन वर्क्स। अगर कोई हल्का हल्का वर्क है तो उसके लिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं, ओके। सो वाई हैंड लेवल देखिए आप ग्राफ में ये बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ये पूरा ऐसा होता है हमारा एडजस्टेबल ग्रेजुएटेड आर्क यहाँ पे होती है, और इस तरीके से स्प्लिट लेवल मूव्स इन कंजुगेट विद द ग्रेजुएटेड यहाँ पर बना होता है, इंटरचेंज आर फेसेंस ये सब बनी होती है इस तरीके से, आई पीस यहाँ पर होता है जैसे कैमरे में, तो इसको हटाते हैं। और फिर क्या होता है, जब सर्वे कभी भी करनी होती है आपको, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में जैसे कि बना है कि ये यहाँ पे दिया गया है कि ये थीटा डिग्री देखो है, यहाँ पर कोई सर्वेयर आपने कोई भी अपना असिस्टेंट खड़ा किया, और इस पॉइंट से आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके देख रहे हैं, और वहाँ आपकी सारी रीडिंग्स सब कुछ इस इंस्ट्रूमेंट में अपने आप एडजस्टेबल होती है, और आपको सिर्फ एज ए इंजीनियर एक जगह खड़ा होना है, और उसके बाद असिस्टेंट जो होगा वो वहाँ पे आपका कोई भी स्टाफ लेकर खड़ा होगा, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, उस स्टाफ में रीडिंग्स क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हो, वो फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद में सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम सिंपल सा जाके उन पॉइंट्स का जो पॉइंट्स सेम एलिवेशन के होंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने वाली लाइन जो रहती है उसी को कंटूर बोलते हैं, ओके। इट्स सिंपल। तो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में चल रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड्स हैं, इन मेथड्स क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कंटूरिंग कर सकते हैं, ओके। और ये आप ये भी ध्यान रखिए कि डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो उसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ हमें पॉसिबल हो, ओके। तो डायरेक्ट मेथड्स वहीं पे यूज किए जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो आपके लिए,
आप इजीली वहाँ पर मूव कर सको। ओके जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये यहाँ पर अगर कोई भी हमारा इंजीनियर खड़ा है, सर्वेयर खड़ा है, यहाँ पे उनका असिस्टेंट खड़ा है, तो उसको अगर ये दिख रहे हैं, ये स्टाफ यहाँ पे दिया है, तो इस रीजन में वो स्टीप देखो स्लोप पे दिए हैं, तो उनको पता है कि हाँ इसका एलिवेशन इतना होगा, इसका इतना इतना, सारे पॉइंट्स किया और फिर रफली हैंड से हमने ड्रॉ कर दिया। ओके तो फर्स्ट स्टाफ और लेवल से जो कि हमने बनाया था पहले, और सेकेंड एक ये हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, इसके द्वारा भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, ये वाई हैंड लेवल और फर्स्ट वन इज ये वाला आपका इस लेवल एंड स्टाफ। ओके तो लेवल एंड स्टाफ और हैंड लेवल इन दोनों को यूज करके हम लोग डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। ओके तो और डायरेक्ट मेथड्स में क्या हो सकता है, जैसे आप गए ग्राउंड में, आपने देखा कि हमारी एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, आपने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया, कैसे, आधा आधा पार्ट, एक सेंट्रल लाइन खींची जो हमने बताई थी आपको कैसे हम लाइन खींचते हैं सर्वेइंग में, उस लाइन को खींचने के बाद फिर हमने स्क्वायर एरिया डिवाइड की 5-5 मीटर 20-20 मीटर के इंटरवल पर हमने ड्रॉ कर ली, ताकि हमको उनके हर पॉइंट्स के एलिवेशन पता कर सके, और उनको हम डायरेक्ट चेन से जाएंगे, चेनिंग करेंगे। चेन के बारे में पढ़े हो, टाइप्स ऑफ चेन भी पढ़े हो आप लोग, टेप्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ टेप्स भी पढ़ाए थे, उसमें एज ए सिविल इंजीनियर क्या करेक्शंस होते हैं वो आपको पता है। तो उनको हम चेन लेकर गए, उस चेन के द्वारा हम लोगों ने क्या किया देखा ग्राउंड पे कि हाँ इजीली हमारा 5 मीटर है तो हम एक चेन से कर सकते हैं, 100 मीटर तक गए उतना हमने कर लिया और वैल्यू नोट कर ली। जब नोट कर लोगे वैल्यू तो हम हर पॉइंट की एलिवेशन जो रहेगा वो हम बता सकते हैं, और जैसे ही आपको एलिवेशन पता चल गया आपने क्या किया, एक सीट उठाई, उस सीट पे वो सारे पॉइंट्स को डिनोट कर दिया, और जिन पॉइंट्स का सेम एलिवेशन रहेगा उनको सबको कनेक्ट कर दीजिए, एक लाइन जो बनेगी फ्री हैंड से उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, वो हमारी कंटूरिंग कहलाएगी। ओके तो कंटूरिंग में आप समझ गए हो कि क्या क्या होता है, आप फिर से समझ लीजिए कि कंटूरिंग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और कंटूरिंग क्या होती है, कंटूरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कंटूर मैप बनाते हैं। और कंटूर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सेम एलिवेशंस वाले होते हैं, उन पे उस इमेजिनरी लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनका क्या होगा, सबका सेम एलिवेशन होगा। ओके तो जब सेम एलिवेशन रहेगा तो उस पे जो आपका रहेगा तो वो हमारा कंटूरिंग होता है, और उस कंटूरिंग होता है। पर्पज क्या होते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या कंटूरिंग के पर्पज होते हैं। हमें मालूम है कि कंटूर अगर मैप दिया गया है तो हम इकोनॉमिकल अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उसको इकोनॉमिकल करने के लिए हम इजीली वहाँ पर कंटूर मैप को रीड करके जान सकते हैं। दूसरा ये भी देखा हमने कि कंटूर मैप अगर आपके पास है, उसमें हमने देखा कि लाइनें बहुत पास हैं, तो हम उससे ये जान गए कि हमारा वहाँ पे अनड्यूलेशन ज़्यादा है। ओके तो हम ये जान गए या तो वहाँ पे हमारा एलिवेशन होगा, मीन्स हिली रीजन्स है, या डिप्रेशंस वैलीज ज़्यादा हैं, कहाँ पर हिल है कहाँ पर वैली होगी, डिप्रेशन रीजन होगा। तो ये हम कैसे जान सकते हैं, हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग में देखा है। जैसे कि अगर कोई भी आउटर कंटूरिंग कोई भी लाइन है, उसके बाद में जैसे जैसे आप उस कंटूर ग्राफ में इनसाइड में बढ़ेंगे तो जब इनर पे जाएंगे तब आपका क्या होगा कि आपने देखा कि वैल्यू हमारी घटती जा रही है। तो जैसे जैसे वैल्यू आपकी घटती जा रही है इनसाइड में, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा डिप्रेशन रीजन होगा। और अगर कोई भी कंटूर ग्राफ आपने ड्रा किया और आउटर से इनसाइड में वैल्यू जो कंटूर का एलिवेशन होगा वो बढ़ता जाए, जैसे यहाँ पे 150, देयर इज़ 140, हेयर 130, ओके एंड 120, तो हम समझ गए ये क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 100, 120, 130, 150, तो ये बढ़ रहा है। तो ये जैसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हिल है, एलिवेशन। ओके तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए ही हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेथड्स कौन से हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड्स में हम आए हैं तो डायरेक्ट मेथड्स में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, हम लोगों ने देखा यहाँ पर सबसे पहला था लेवल स्टाफ, ये देखिए लेवल स्टाफ को पढ़े हैं, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है बाय हैंड लेवल। तो लेवल स्टाफ में हम राइज एंड फॉल वाला मेथड यूज करेंगे, जिसको अभी हम पढ़ना है। लेवलिंग के द्वारा जो काम करते हैं वही सारे मेथड यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये सिंपल होता है, लेकिन ये होता क्या, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो थोड़ा टीडियस होता है। ओके वाई हैंड लेवल होता है, हैंड लेवल का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें थोड़ा हमारा और आसान हो जाता है कि डायरेक्ट आप सर्वेयर लेकर बैठ गए और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उसको इस इंस्ट्रूमेंट से। ओके सो इस इंस्ट्रूमेंट से जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट चीज़ों को हम कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक,
तो उसके बाद में जब डायरेक्ट मेथड से है, डायरेक्ट मेथड्स में अगर आपको और किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनको भी पढ़ लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स रहेगा और उसके फिर हम देखेंगे किस तरीके से इसमें सॉल्व चीज़ें होती हैं और कैसे हम ग्राउंड पर ये चीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड्स में। ओके, तो डायरेक्ट मेथड्स आपको पता है कि इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दो ही मेथड्स मैंने बताए और डायरेक्ट के अंदर जो मेथड्स थे वो हमने स्टाफ के द्वारा, लेवलिंग के द्वारा और जो भी प्लेन टेबल और थियोडोलाइट्स का यूज करके जो भी कर सकते हो बाई हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज करके, वो सारे चीज़ों को यूज करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। अब इसके बाद में जब आपका ये इनडायरेक्ट मेथड है तो इनडायरेक्ट मेथड्स में आ जाइए। ओके, तो डायरेक्ट मेथड्स में हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए, वहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी का। ओके, उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स आर लेस एक्सपेंसिव। पहला पॉइंट कि डायरेक्ट मेथड जो थे वो एक्सपेंसिव थे, उनमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है और टाइम टेकिंग भी होते हैं और टीडियस भी होते हैं, तो उसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स किस लिए बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए कि लेस एक्सपेंसिव रहे। पता चले आपकी कास्ट प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए सर्वेइंग में ही, तो फिर अदर जो कास्ट रहेंगी उसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमको ध्यान बस इतना रखना है कि कोई भी चीज़ है हमारी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ओके, तो उसके लिए ही हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक, अदर लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और क्या होता है, ये जो मेथड्स होते हैं इनमें टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होता है। जिस डायरेक्ट मेथड की मैंने बात की थी टीडीएस होते, उनमें क्या होता है, उनमें हमको सारे स्टेशन पे सेटअप करना होता है और उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए हमको क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड दिया गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पहला, इनकी कास्ट कम होती है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स, और दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड लेस टीडियस होते हैं एज कंपेयर्ड विद अ डायरेक्ट मेथड। और उतनी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती होगी और ये सिंपल भी रहते हैं मेथड्स, उतने ज़्यादा ये हमारे टीडीएस मेथड्स नहीं होते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में ये हो गया कि डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में क्या चीज़ें होंगी। तो डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस भी आपको तैयार रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स का क्या डिफरेंस होता है। तो कंटूरिंग के लिए आप समझ रहे हो कि कंटूर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, जान गए हो। पर्पज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेथड्स में हमने देख लिए डायरेक्ट मेथड्स, और डायरेक्ट मेथड्स ही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो डायरेक्ट मेथड्स में हमने देख लिया लेवल कैसे करते हैं, स्टाफ लेवल्स, और वहाँ पे हम किसी हिली रीजन पे किस तरीके से उनको यूज किया है। उसके बाद में इनडायरेक्ट मेथड्स आए, तो डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट मेथड्स हमारे डिफरेंट हैं। ओके, तो जब डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड जो डिफरेंट हैं, तो वो पहला पॉइंट हमारा लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग एंड द लेस टीडियस। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी एक अगर ये हिली रीजन है, अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो आपको पहले यहाँ पर एक स्टेशन सेट करनी होगी। ओके, अब इस स्टेशन को सेट करना है, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाने हैं, यहाँ पे सब सेट करने हैं। उसके बाद क्या है, इसका रिड्यूस लेवल फाइंड करना है। ओके, जब रिड्यूस लेवल हम फाइंड करेंगे उसके बाद हमको क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फिर जो पास वाला जो भी एक हमारा बेंच मार्क होगा, फिर हमें क्या करना है, अब इस हिल एरिया पर हमको चढ़ने के लिए यहाँ पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा, स्टाफ लगाना होगा, यहाँ चेक करना होगा। अब इस पे जाने में कितना हमारा टाइम लग सकता है। ओके, मे भी पता नहीं किस तरीके से कंडीशन होगी, ये तो हमको पता नहीं है। तो अब यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो सकता है। फिर इसके बाद में आपको पता चला पूरा दिन हो गया, बारिश हो रही, कुछ भी हो रही, तो यहाँ पर फिर आए, फिर आप यहाँ पर गए। तो इस तरीके से आपको एक रीजन था, इसको ही पूरा हमें इसका एलिवेशन कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओके, और एक्सपेंसिव भी हो गया, क्योंकि अगर इसकी टाइम बढ़ गया, आप समझिए टाइम अगर बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि अगर जैसे कम टाइम था तो जल्दी हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, और अगर 2-3 दिन बढ़ गया तो लेबर कास्ट भी बढ़ जाएगी और कई चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव भी हो जाता है मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड की कुछ ये चीज़ें हैं, सही भी है। अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हम डायरेक्ट से जल्दी यूज कर सकते हैं, उतना बड़ा नहीं रखना है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। और क्या है, दीज मेथड्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन अ स्मॉल स्केल सर्वे ऑफ द लार्ज एरिया। अब याद रखिएगा, देखो मैंने बात की ना कि ये जो लार्ज, अगर स्मॉल कहीं पर था हमारा प्रोजेक्ट तो हमने डायरेक्ट मेथड कर दिया, लेकिन जब कोई लार्ज होता है तो हमें फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं।
ओके और ये लार्ज के लिए सर्वे जब करते हैं कहीं पे लार्ज एरिया का तब करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और पॉइंट है इनडायरेक्ट मेथड में कि हम यहाँ पर स्मॉल स्केल सर्वे ऑफ लार्ज एरिया के लेते हैं, स्मॉल स्केल लेते हैं। ओके यहाँ पर आप स्केल कंसीडर करनी है। स्केल बारे में पढ़े थे कि स्केल क्या होता है कि जो हमारी डिस्टेंस, जो हमारी पोजीशन किसी भी ग्राफ पे है उसकी रियल में ग्राउंड में कितनी है उनका रेशियो जो रहता है, वही हमने एक रिड्यूसिंग फैक्टर्स जो हमने पढ़ा था RF के बारे में, तो वो हमने जाना था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको स्केल माननी होगी। स्केल जैसे कि अगर हमने 1 mm इक्वल टू 1 किलोमीटर मान लिया अगर, ओके तो अब हम क्या करेंगे, स्केल जो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF, ओके रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो रहेगा तो वही होता है। तो स्केल की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि 1 mm अपान 1 किलोमीटर। 1 mm क्या है हमारी, जो हमारा ग्राफ होगा उस पे, और 1 किलोमीटर क्या है, जो ग्राउंड पे इसकी डिस्टेंस होगी। ओके तो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होगी और वो 1 किलोमीटर, और जो हमारे ग्राफ में है वो 1 mm है। तो अगर इनको हम एक कांस्टेंट वैल्यू में लाना चाहे तो यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो 1 mm डिवाइड बाई 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो गया, और फिर मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 हो गया, फिर सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करो, तब हमारा ज़्यादा mm कट जाएगा। तब हमारा क्या बचा ये फैक्टर 1 अपान 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 का 6। तो ये बहुत लार्ज स्केल हो गई। इस तरीके से हमको जाना है, स्मॉल स्केल हो गई बहुत ज़्यादा। सर्वे क्या कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी एरिया का कर रहे हैं। ओके तो ये चीज़ हमको इनडायरेक्ट मेथड्स में इस तरीके से समझनी है, स्केल जाननी है आपको और अच्छे से स्केल समझनी है और फिर करने हैं। तो मेथड्स ऑफ जो कंटूरिंग में इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, देयर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स of contouring. First one is grid methods, second is cross sectional method, third one is the radial line methods और tachometric methods. इन 3 मेथड्स जो हैं इनडायरेक्ट मेथड्स के, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसके बारे में कि इनडायरेक्ट मेथड्स जो हम लोग यूज कर रहे थे उसमें किस तरीके से ग्रिड मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड और रेडियल लाइन मेथड्स या टेकोमेट्रिक मेथड्स हम यूज करते हैं। ओके तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में यूज करते हैं। तब के लिए थैंक यू।